برہوت کے میدان سے تو عربی اونٹ بھی زندہ نہیں جا سکتا. آپ کس ایجاد سے زندہ رہ گئے ابن عقیل؟ میں مختار ہوں جناب مسلم، پسر ابو عبید ثقفی. مختار کسی تعارف کا محتاج نہیں. کئی سال پہلے مدائن کے سفید محل میں تمہیں دیکھا تھا میں نے. اس وقت میں ایک نوجوان تھا اور تم جیسے بڑے حضرات کی نظروں میں آتا ہی نہیں تھا. میں نے مدائن کے محل میں سنا کہ میرے چچا زاد بھائی امام حسن کی معاویہ سے جنگ میں غیر جانبدار تھے اور زراعت میں مصروف ہو گئے. اس روز تمہاری بے طرفی مجھ جیسے کی نظر میں، جس نے سوائے بے وفائی اور تلخی کے کچھ نہ دیکھا تھا، بہت میٹھی لگی. خدا رحم کرے تمہارے چچا سعید پر کہ انہوں نے کسی مدد سے مضائقہ نہیں کیا. یہ گوشہ نشینی سالوں سے مجھے اندر سے کاٹ رہی ہے. ہم سب خطاؤں کے جھرمٹ میں ہیں. شیطان اسی پر معمور ہے اور اس کی تیغ بھی بڑی کاٹ والی ہے. اس نے قسم کھائی ہے کہ بنی نو انسان کو بہکا کر رہوں گا. ان پر بہت غضبناک ہے شیطان، جن کا ایمان لرزش کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں میزبانی کے لائق سمجھا. کیا آپ تنہا سفر کر رہے تھے؟ نہیں، تنہا نہیں تھا، تنہا ہو گیا. 2 راہبان تھے میرے ساتھ جو رستے میں گرمی اور پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. حجاز و عراق کے درمیان کا یہ میدان برہوت ایک جہنم ہے. اس جہنم سے گزرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ سفر عشق کا سفر ہے بھائی. اگر اجاز عشق نہ ہوتا تو میں بھی اب تک مر چکا ہوتا. کس سمت سے کوفہ میں داخل ہوئے ہیں آپ لوگ؟ نمک کی وادی کی طرف سے. سپاہیوں سے ٹکر تو نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں، کچھ حسین ہیلے بہانوں کے ذریعے ان کی کمن سے نکل آئے. کیا ممکن ہے کہ انہوں نے آپ لوگوں کا پیچھا کیا ہو؟ نہیں ابو اسحاق، بے فکر رہو. ظاہراً جناب مسلم کی خبر یزیدیوں کو نہیں ملی ہے. کیا اب تک شیعہ کوفے میں غریب ہے؟ پھر وہ لوگ کہاں جنہوں نے میرے چچا زاد بھائی حسین کو ڈھیروں ڈھیر خط لکھے؟ وہ بلاوے کہاں اور یہ چھپنا کہاں؟ جناب مسلم، ان بلاووں کا ہمارے چھپنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوفہ میں یزید کا نمائندہ اور اس کے شرطے حکومت کرتے ہیں. شیعوں کی اگر کوفے میں کوئی قدرت ہے تو وہ چھپی ہوئی ہے. جب تک شیعوں کا کوئی دارالحکومت نہ ہو، شرطے اور فوجی سپاہی نہ ہوں، فرما روا اور حاکم نہ ہوں، ہمیں احتیاط کرنی ہوگی. تمہاری اپنی کیا رائے ہے مختار؟ کیا کوفے کے لوگ واقعاً نبی کے بیٹے کی طرفدار ہیں؟ کیا عرض کروں، طالب تو ہیں، مگر مشہور حکایت یہ ہے کہ کوفی وفا نہیں کرتا. ڈر ہے کہ ماضی کی طرح یہ قوم گدھے کی طرح ثابت نہ ہو جس پر بوجھ لادا جا سکتا ہے.
मैंने इरादा कर लिया है कि फर्जंद पैगंबर पर अपना खून निसार कर दूंगा। हाथ बढ़ाओ इब्न अकील। मैं चाहता हूं कि सफीद हुसैन इब्न अली के हाथ पर सबसे पहले बैत करने वाला शख्स बन जाऊं। लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। मुख्तार, कूफा के बुजुर्ग और बाइज्जत शियों को बाखबर कर दीजिए, मुझे बहुत जल्द अपने चचाजाद भाई हुसैन का पैगाम उन तक पहुंचाना होगा। मैं मुस्लिम इब्न अकील अपने चचाजाद भाई हुसैन इब्न अली की तरफ से मामूर हुआ हूं कि कूफा आकर इनको कूफियों की बात की सच्चाई से और इनकी दावत की सेहत से मुत्तला करूं। ऐ लोगों, जो बैत डर, खौफ या जबरदस्ती की जा रही हो वो बातिल और हराम है। आप लोग अपने इख्तियार में आजाद हैं, हुसैन या यजीद। मुबारक हो अबू इसहाक, इश्क की हुकूमत दोबारा खड़ी हो गई है। अभी फैसला करना जल्दबाजी है क्या? किस बात पे दिल में शक ला रहे हो अबू इसहाक? जानते हो मैं क्यों डर रहा हूं बिन कामिल? इस कौम के बुजुर्गान अपने माजी के दाग को मिटाने की फिक्र में है बनिस्बत ये कि अरबी हुकूमत बर्पा करें। सोचो अगर यजीद ने किसी दिन एक लश्कर भेज दिया कि अपने मुखालिफिन का अकेला कमा कर दे, तो किसके भरोसे हम उसका मुकाबला करने खड़े होंगे? ऐ कूफा के लोगों, जान लो कि जब किसी खलीफा के लिए बैत का हाथ बढ़ा रहे हो तो तुम पर फर्ज है कि अपने अहद पर साबित कदम रहो। आप लोगों को खुदा की किताब और सुन्नत नबी की तरफ बुलाता हूं, क्योंकि सुन्नत मुर्दा और बिद्दत जिंदा हो गई है। मैं अपने चचाजाद भाई और अपने भरोसेमंद शख्स को आप लोगों की तरफ भेज रहा हूं ताकि वो मुझे आप लोगों के अज़म और राय से आगाह करे। और अगर वो ये लिखता है कि आप और आपके बुजुर्गों और सरकर्दा अफराद की राय वही है जो आप लोगों ने लिखी है, तो मैं आप लोगों की तरफ आ जाऊंगा ताकि आप सबको निजात की साहिल की तरफ हिदायत करूं। उस खुदा की कसम कि जिसके कब्जे में हुसैन की जान है, इमाम को कुरान पर अमल पैरा होना चाहिए और वो अदल व इंसाफ पर अमल करे और हक के महवर पर कायम रहे और अपने नफ्स को खुदा की मर्जी पर मजबूर करे। वस्सलामु अलैकुम व अला इबादुल्लाहिस सालिहीन। हाय हाय हाय, दर्द फिराक से
خدا کی امان، یعقوب نبی آنکھوں سے محروم ہو گئے اپنے یوسف کے انتظار میں۔ وہ یعقوب جو کہ رسول خدا تھے، ان کو ہجر کی دوری برداشت نہ ہو سکی۔ اے وہ جو یوسف کا پیراہن ہو، اس سے زیادہ ہمیں دوری برداشت نہیں ہے۔ ہمارے مرنے سے پہلے کچھ کیجیے، ہماری مراد لکھ دیجئے کہ وہ آ جائیں۔ مسلم لکھ دیجئے۔ مختار، بے شک تم نے اپنے چچا سعید کی یاد تازہ کر دی۔ خدا تمہیں جزائے خیر دے کہ تم نے کسی بھی مدد سے گریز نہیں کیا۔ افسوس ہے کہ حالات بدل گئے اور آپ نے نتیجتاً ہم سے مہمان نوازی کا حق چھین لیا۔ اگر آپ کا اپنا ارادہ نہ ہوتا ہمیں چھوڑنے کا تو خدا کی قسم میں اپنے خون سے آپ کی مہمان نوازی کی ضمانت دیتا۔ درود و سلام تم پر میرے بھائی۔ درود و سلام ہو آپ پر۔ مجھے کوفہ کے اطراف کے حالات سے بے خبر مت رکھنا، میں بھی تمام تر خبریں آپ تک پہنچاؤں گا۔ کہ ان قبیلوں سے غافل نہ رہے جنہوں نے اب تک کسی کی بیعت نہیں کی ہے۔ ان لوگوں سے ایسے معاملہ طے کر لو کہ وہ سب واقعی کسی کی طرفداری نہ کریں اور کم سے کم ہمارے دشمنوں کا ساتھ نہ دیں۔ عمر سعد کو حکم ملا ہے کہ عرب کے انہی قبیلوں میں سے بے حساب سونے کی لالچ سے ایک عظیم لشکر بنائے۔ ایلیاتی لوگ ممکن ہے دین کے معاملے میں سست و کاہل ہوں، مگر ایلیاتی رسم و رواج کے معاملے میں نہایت مضبوط لوگ ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی حرمت کو ان درہم و دینار کے بدلے بیچ ڈالیں۔ مختار کا ایک اور پیغام بھی ہے۔ ہم سن رہے ہیں۔ ابو اسحاق کچھ پریشان تھا۔ یہ اتنا کیوں گھبرا رہے ہو بھائی؟ ابو اسحاق کا پیغام کیا ہے؟ وہ کیوں پریشان تھا؟ وہ اس بات پر پریشان تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مکار لوگ شیعوں کے نام سے ہمارے حلقے میں داخل ہو جائیں اور جناب مسلم کی رہائش گاہ سے باخبر ہو جائیں۔ اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ جناب مسلم باری باری گھر بدلتے رہیں اور کسی معین جگہ پر زیادہ عرصے نہ رہیں۔ مختار ذاتی طور پر ایک بری سوچ رکھنے والا انسان ہے۔ اس کے گمان کے مطابق تو ہمیں اپنی آنکھ کے دیدے پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اس کے خیال میں ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ دوست اور دشمن کو نہیں پہچانیں گے اور معاملہ خراب ہو جانے دیں گے۔ غلط مت سوچو سلیمان، ابو اسحاق ایک دور اندیش شخص ہے، اس کا پیغام کوئی برا نہیں ہے۔ ابن زیاد مکاری کے ساتھ کوفے میں داخل ہوا ہے، بعید نہیں ہے کہ اس کے کارندے کسی مکاری سے ہمارے راز سے باخبر ہو جائیں۔ ہانی جان، جناب مسلم آپ کے گھر کے علاوہ کہیں بھی چلے جائیں، ہمارا ان سے ملنا مشکل ہو جائے گا۔ تمہاری بیماری ایک اچھا بہانہ ہے۔ عزیز احباب تمہاری عیادت کو آئیں اور کوئی شک بھی نہ کرے۔ بھائیوں، مختار کا پیغام یہ مطلب رکھتا ہے کہ احتیاط کرنا عقل کی نشانی ہے۔ اب جبکہ قضاء و قدر الہی کے تحت ہم مجبور ہیں کہ ہم چھپے رہیں، تو بہتر ہے کہ اپنے عزیزوں سے بھی اجتناب کریں، اور ان لوگوں سے جن کے بارے میں کوئی شک یا تردید ہو ان سے ہمارے بارے میں یا ہمارے معاملات کی روح سے بات نہ کریں۔ تم نے سنا ہے ابن عقیل؟ تم نے سنا اس حرام زادے کا پیغام؟ ابن برجان آج رات میری عیادت کے لیے آ رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ عیادت شیطان کی عیادت ہے۔ وہ آ رہا ہے تاکہ لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو برحق اور قابل توجہ دکھائے۔ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اس کے شر کو ختم کر دیں۔ کوفے کی راہ مولا حسین کے لیے ہموار کرتے ہیں۔ مطلب کیا کریں شیخ؟ حالانکہ اگر وہ میرے گھر میں مارا گیا تو ساری بات میری گردن پر آ جائے گی کہ مہمان کو عرب نے مار دیا، مگر میری تمام عزت و آبرو میرے مولا حسین پر قربان۔ آپ ابن مرجانہ کو مار دیں گے؟ مگر کیسے شیخ؟ اپنی تلوار کو آمادہ رکھ کر اسی زیر زمین کمرے میں چھپ جائیں۔ جب میں پانی طلب کروں تو باہر آ کر ایک کاری ضربت سے اس کا کام تمام کر دیں۔
शक व तरतीब मत कीजिए जनाब मुस्लिम। अफसोस है कि इस बीमारी ने मुझे नातवा बना दिया, वरना मैं खुद ही उसकी जान ले लेता। उस मक्कारियों की जड़ का जिंदा रहना यानी उन्हीं बाजियों का दोबारा दोहराए जाना जिन्होंने जंग के सिफ़ैन में मौला अली की कमर तोड़ दी थी, यानी हमारी हुकूमत हक को बर्पा करने में नाकामी। खुदा की कसम, इब्ने मरजाना कूफा आया ही इसीलिए कि कूफे को मक्तले हुसैन बना दे। अबुल फतह अपने सारे कारनामे आपके सामने भूल गया और यहाँ से चला गया। उसके दांत इस तरह लरज रहे थे कि मैं डर रहा था कि टूट ना जाएं। हनी, हनी जान, अगर अभी सोया है तो इसे मत जगाओ। इसने खुद जिद की थी कि जब आप तशरीफ ले आए तो इसे जगा दूं। हनी, हनी उठो, जनाबे अमीर आए हैं। भला दूर रहे शेख, हम दुआ करते हैं कि हाथ जल्द शिफा पा जाए। खुदा के वास्ते मत घबराओ। ए हाथ, तुम्हें खुदा का वास्ता यूं ठंडे मत पड़ जाओ। पानी, कुछ पानी ला दो मुझे अबा सरद। मार चुके? शर्म करो, शर्म करो। वाह हो तुम पर, तुम लोग मेहमान पर तेग चलाते हो। ऐ इब्न अकील, तुमने अपने काम से अपने चाचा अली की आबरू जाया कर दी। अली नामर्दी के साथ कभी दुश्मन पर वार नहीं करता था। अली ने काफिरों को शुक्र खुदा के सिक्कों के मालिक की नजर में मुझे शर्मिंदगी नहीं हुई। 3000 शामी दिनार हैं। आप गिनेंगे नहीं? तोहफे के घोड़े के कोई दांत नहीं गिने जाते भाई। ये शरई पैसे हैं क्या? जैसी आपकी मर्जी, जहां चाहे लगाएं। ये 3000 दिनार उन लोगों की कमाई है
जो अपना खून पसीना एक करके अपनी रोजी कमाते हैं और अहले बैत के आशिक हैं। इन सिक्कों को बहुत मेहनत और मुशक्कत से हासिल किया है। फर्जंदे रसूल की रकाब में हाजिर नहीं हो सकते थे तो अपनी गैर मौजूदगी का इजाला करना चाहते थे ताकि जहाद की फजीलत से महरूम न रह जाएं। आपने क्या फरमाया, ये सिक्के कितने घरानों से मुतालिक हैं? वल्लाह आलम, मुझे सारी रात बैठकर उन सब के नाम याद कर करके गिनने होंगे। तकरीबन 70-80 घराने होंगे। हाँ। ये बताएं कि सब ने एक जितनी मदद की है या सब घरानों ने अपनी अपनी इस्तेताद के मुताबिक भिजवाए हैं? हर शख्स ने अपनी इस्तेताद के मुताबिक मदद की है। जो तंगदस्त था उसने कम दिया है और जिसकी इस्तेताद ज्यादा थी उसने ज्यादा दिया है। कुर्बान जाऊं आप पर। कोई शक व तरद्दुद है क्या? ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जिन 70 या 80 घरानों की आमदनी एक जितनी ना हो, उनकी इमदाद ठीक 3000 दिनार हो? न एक दिनार कम, न एक दिनार ज्यादा। अपने बुजुर्गवार की खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा कि 3000 में से 168 दिनार कम थे जो कि मैंने शामिल कर दिए। ये रकम मैंने हज पे जाने के लिए अलग करके रखी थी, मगर मैंने सोचा कि हज से ज्यादा वाजिब यह है कि अहले बैत की मदद की जाए। मैंने हज को एक तरफ रख दिया और इसे 3000 दिनार बना दिया। माफ करना कि तुम्हारी बात की सच्चाई पर मुझे शक हुआ। मैं माल की तहारत के बारे में मुतमईन होना चाहता था। अब इब्ने मरजाना का हाथ इतना गंदा हो गया है कि लोगों की इज्जतों का भी ख्याल नहीं करेगा। नामूस की हवा उतरवाएगा, मुसलमानों की औरतों पर हाथ उठवाएगा। मैं उठवा का बेटा नहीं, अगर कूफे को उस खाकी के लिए खपत का बना दूं। मैं हूं जनाबे हानी, हमसी मुजाहिद। 3000 दिनारे शामी। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे घर में जनाबे मुस्लिम के हुजूर मैंने 3000 शामी दिनार उनके हवाले किए थे? तुम्हारे पिछले झूठ को मैं नजरअंदाज कर दूंगा, इस शर्त पर कि अब सच बोलो। मुस्लिम को कहां छुपाया है तुमने? अपने इन बेगैरत सिपाहियों से पूछो। औरतों की अबा और चादर पर भी उन्होंने रहम ना किया मगर उन्हें कोई मुस्लिम ना मिले। अगर मुस्लिम मेरे घर में होते तो तुम्हारे मक्कार हीला घरों के पंजे में आ जाते। हाँ नहीं, मेरा बाप जियाद तुम्हारा करीबी दोस्त था। ऐसा काम ना करो कि मैं अपने बाप की दोस्ती की लाज ना रखते हुए मैं तुमसे ऊंची आवाज में बात करूं। मुस्लिम कहां है? मुस्लिम कुछ अरसा मेरे मेहमान थे। इससे पहले कि तुम अपने रस्सी तुड़ाए हुए कुत्तों को मेरे पीछे भेजो, मुस्लिम मेरे घर से चले गए। कहां गया? तुम उसके करीबी साथियों में से एक हो, यकीनन जानते हो कि मुस्लिम कहां गया। क्या नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। झूठे!
जी अमीर, ये कैसी आवाज है? आप पे कुर्बान जाऊं, मैं नहीं जानता। मुमकिन है कि ये मैं सजी हूं। कौमे कबीला हानी मुस्लिम बिन अकील मेरी हिमायत में था और है। तो मैं थोड़ा सा मौका देता हूं कि कूफे से चले जाओ और मुस्लिम का पीछा छोड़ो, वरना कूफे को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगा। सुन रहे हो? बेगैरती देख रहे हो मुसलमान भाइयों? ये आदमी मेरी हुकूमत में मुझ पर हुक्म चला रहा है। खुदा की कसम, इस तौहीद का जवाब इसका खून है। माक़ला, काज़ी शुरे को बुलाओ जल्दी। बिनो रईस, इसे कमरे में बंद कर दो। मुझे कौवों की कहां से डरोगे? कल मीसम तम्मार और आज हानी, यकीनन कल मेरी या फिर आप हजरात में से एक की बारी है। अगर मामला यूं ही चलता रहा तो मौला हुसैन के कूफे पहुंचने तक इब्ने मरजाना तमाम शिया उलमा और ज़ुहमा में से एक एक का सर पानी में डबो देगा और रह जाएगी मुट्ठी भर आवाम। बज़ाहिर खौफ खुदा रखने वाले शेख को, जो कि काजी शुरा की तरह होगा, भेज देंगे ताकि 4 आयतों और हदीसों से लोगों का मुंह बंद करके कयाम का फातिहा पढ़वा देंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हानि को अपने पास रखते हुए उस पर जुल्म जफा करते हुए मिज़हजियों का मुंह बंद कर दिया। मैं किसी का मुआखिजा नहीं करना चाहता। अगर आप भी ऐसा गुमान करेंगे तो मुझ पर हक रखेंगे। अगर जनाब मुस्लिम इब्ने ऊसजा उस शियत का दिखावा करने वाले हीरागर शख्स की 4 रातों की नमाज शब पर भरोसा करके उसे हानि के घर ना ले जाते तो आज हानि की ये हालत ना होती। माजरत चाहता हूँ शेख, मैं अपने इमाम बरहक की तरफ से कूफा की तरफ भेजा गया हूँ ताकि कूफा वालों की बात की सच्चाई की गवाही दे सकूं। अब तक तकरीबन 18,000 कूफे वालों ने मेरी बैत की है। मैं अपने चचेदार भाई मौला हुसैन को लिख चुका हूं कि वो कूफा आ जाएं, और आ रहे हैं। क्या आप लोग पिछले हादसात के तहत मुझे शक करने का हक देते हैं? कैसा शख्स जनाब मुस्लिम? कूफे वालों की वादा खिलाफियों पर। आज मिज़हजियों ने यह साबित कर दिया कि कूफे वाले इस जैसे मामलात में बहुत ऊंची आवाजों में नारे लगा सकते हैं, मगर बवक्ते जरूरत वो पीछे हट जाते हैं, बिलाखिर अपनी बैत का इंकार कर देते हैं। जब बनी मसद जैसा बड़ा और बानफूस कबीला काजी शुरी की वाज़ो नसीहत के फरेब में आकर अपने उस बुजुर्ग कबीला को, जिससे इनका खूनी और कौमी रिश्ता है, उसे खौफ कतर की भी छोड़ सकते हैं, तो फिर मेरे चचेदार भाई हुसैन के साथ क्या करेंगे, जिनकी ना कोई कौम है और ना कोई कबीला? तुम्हारे चचादार भाई की कौम और कबीला शिया है जनाब मुस्लिम। शियों की बैत हर खून और कबीले की बैत से पहले। मैं भी यही अर्ज करना चाहता हूँ, यही अर्ज करना चाहता हूँ कि अब जबकि कबीला बनी मसद ने अपने बुजुर्ग हानी की मदद से हाथ खींच लिया है, तो शिया कबीले को उनकी मदद के लिए खड़ा होना चाहिए। मुझे जिहाद का हुक्म नहीं है, मगर हानी की हिमायत करना अपना और शियों का फर्ज समझता हूँ। हानी का गिरफ्तार होना हम पर वो फरीजा छोड़ गया है कि अब जायज नहीं है कि हम जगह खाली करें। मैं शियों के कयाम को इमाम अलैहिस्सलाम के कूफा पहुंचने से पहले मकरूह समझता हूं, क्योंकि मुझे डर है कि दुश्मन कहीं इस कयाम के बहाने मैदान को मौला हुसैन के लिए दुश्वार बना दे और उन्हीं पिछली अफवाहों को जुबाने ज़दे खासो आम करवा दे कि देखा तुमने लोगों, देखा ना कि हुसैन हुकूमत की लालच रखते थे, देखा ना तुम लोगों ने कि हुसैन जंग का इरादा रखते थे और हुकूमत को अपने जद की मीरास समझते थे। आप लोगों को भी कयाम करने का मशवरा नहीं दूंगा। चनाचे अगर जनाब मुस्लिम के दलाइल के तहत हानि की हिमायत के लिए खड़े होना चाहे तो गुनाहगार नहीं है। सुलेमान कहाँ? मैं याकूब की तरह अपने यूसुफ के इंतजार में बैठने जा रहा हूं हबीब। यानी तुम हानि की हिमायत नहीं करोगे? मेरी राय वही है जो तुम लोगों ने सुनी। मैं तुम लोगों की अज़्म ममानियत नहीं करूंगा। मगर तुम ही तो हो जो काजी शुरे जैसे के मद्दे मुकाबिल खड़े हो सकते हो। अगर तुम रहोगे तो काजी शुरे
जाली हदीसों, झूठी बातों और वही के आयत की गलत तफसीर करके लोगों को सुस्त कर देगा। इब्न ज़ियाद शुरह जैसे हरीफ को 2 बार मैदान में नहीं भेजेगा। अगर भेज दे तो बसरो चश्म में आ जाऊंगा। इब्न औसजा, वक्त ज़ाय किए बगैर तमाम खबरें मुख्तार तक पहुंचा दीजिए। इब्न मज़ाहिर, मस्जिद जाइए और या मंसूर मित की आवाज के जरिए साथियों को बुलाइए। मंसूर अहमद के नारे किस बात के? इसराफील ने सूर फूंक दिया है बिन हुरैस। अपना खौफ पहन लो। मुस्लिम और उसके साथियों ने दारुल हुकूमत का आज़म किया है। उनके बड़े बिन समामा साइदी और बिन जादाए जदली हैं। दरवाजा बंद कर लो, बंद करो दरवाजा, बंद करो। ये मखलूक किस जहन्नुम से भाग कर आई है? डरो मत, डरो मत। तुम डर गए तो कूफे की इब्नुल वक्त जमात का क्या कहना है वो भी डर जाएंगे। चूहों की तरह इधर उधर फैल जाएंगे। तुम खौफ व कदर के लड़ाकू शख्स हो। तुम खुद ही तो मुस्लिम को जंग पर उकसाना चाहते थे। रोज दुआएं करते थे कि मुस्लिम तलवार खींचकर मैदान में उतर आए। दुआ आ गया। मैं चाह रहा था माकल, मगर इतनी जल्दी नहीं। उमर साद ने अब तक अपने 10,000 अफराद वाले लश्कर को तैयार नहीं किया। उमर साद के 10,000 अफराद वाले लश्कर पर उम्मीद लगाने के बजाय अपने ना देखने वाले बेशुमार हीलों पर तकिया करो। तुम हार क्यों मान गए? डर अकल की दुश्मन है। डरोगे तो अकल काम करना छोड़ देगी। सुनो माकल, सुनो। इनकी आवाज साफ वाज़ेह है कि इनकी तादाद बहुत है। ये नारे कम से कम 2-3 हजार अफराद के हैं। 2-3 हजार अफराद उन 12,000 शामी अफराद के मुकाबले में जो कूफे आ रहे हैं 4 पर 1 होते हैं। तुम शाम के लश्कर पर यकीन कर चुके हो? नहीं, मैं तुम्हारी तदबीर पर यकीन कर चुका हूँ। क्या मैं काजी शुरैह को बुलवा लूं? नहीं माकल, नहीं। ये मेहंदी सिर्फ मिसहजे के हंगामे में रंग ला सकती थी। उस जैसी चाल एक जानी पहचानी तदबीर है। हमें सामरी के बछड़े का दामन थामना होगा माकल। सोना, सोना माकल, कह दो खजाने में जितना भी सोना हासिल किया जाए। मैं सोने के मौजे पर ईमान रखता हूं। मुस्लिम ने वाकई कयाम किया है। मैं सोने से कयाम करूंगा। ए कूफा वालों, आप लोगों ने अदल व इंसाफ बर्पा करने के लिए कयाम किया है। फिस्क व फजूर के खात्मे के लिए आप लोगों ने उन लोगों पर तेग खींची है जिन्होंने
वही की बातों को कम वजन करार दिया, झूठ को अपना कर दौलत जमाई, कुफ्र फैलाया और सितमगर बन गए। उन लोगों ने कुदरत और हुकूमत को हासिल किया, लोगों की खिदमत के लिए नहीं बल्कि अपने ऐशो इशरत के लिए। उन्होंने इफ्तरा और झूठ की परवाह ना की और गीबत को अपनी तफरी का जरिया बना लिया। नमाज रोजे को रियाकारी के लिए अंजाम दिया और हज को गुर्बत फैलाने का जरिया बना लिया। सुन्नत सैयदुल मुरसलीन को पीठ दिखा दी और सुन्नत जाहिली की तरफ रुख करके गुनाहगार हो गए। गुनाह बेईमानी की एक औलाद है, गुनाह खुदा को ना मानने का एक तल्ख फल है, गुनाह यौमुल जज़ा पर यकीन न रखने का नतीजा है। गुनाहगार शख्स मौत को फना समझता है, बका नहीं। मौत हक है, मीजान हक है, अदल व इंसाफ हक है। ऐ लोगों, आपने उनसे बैत की है जिन्होंने बराए अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर और अपने जद नबी मुरसल की सुन्नत के अहिया के लिए कदम उठाया है। ये गवाही मेरे चचेदार भाई इमाम हुसैन इब्ने अली की है जो आपकी तरफ आ रहे हैं। तो फिर अपनी बैत पर साबित कदम रहिए और अपने खुदा के अलावा किसी से मत डरिए कि खुदावंद आप लोगों में से फर्मा बरदारों के साथ रहीम और करीम है और आपके नाफरमानों और सरकशों पर जब्बार और कहार है। ऐ मर्दम कूफा, हमने आज अपने भाई हानी की हिमायत के लिए कयाम किया है और कुर्सी नशीन कूफा से ये चाहते हैं कि वो अमीरी की कुर्सी छोड़ दे, क्योंकि आज के बाद वो आपकी राय के मुताबिक आप लोगों में किसी किस्म की विलायत नहीं रखता। और ये जान ले कि लोगों की राय के मद्दे मुकाबिल खड़ा होना सिवाय जिल्लत और रुसवाई के और कोई नतीजा नहीं रखता। खुदाया, तू ही इस पत्थर के हिकमत से वाकिफ है। तूने इस पत्थर को इज्जत और मंजिलत बख्शी और एक गिरा कदर गौहर बनाया है और लोगों को इसके सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। तो फिर तुझे तेरी इस निशानी में छुपे मुआवजे की कसम देता हूं कि इसे शर के दफा करने का सबब बना दे और इसकी चमक को अपने जाहिल बंदों की बीनाई का जरिया बना दे। आमीन। आइए नोश कीजिए। मैं आपको और आपके खानदान वालों को सोने में तोल दूंगा, बशर्ते कि खताकारों को मुस्लिम के इर्द गिर्द से मुंतशिर कर दो। जाओ और महल की खिड़कियों से जाहिर होकर अपने लोगों से बात करो और उन्हें इताअत की शर्त पर सोने की बशारत दो और उन्हें लश्कर शाम से और बैतुल माल के वजीफे के कट जाने और आजा जवारे काट का शहर बदल किए जाने पर डराओ धमकाओ। ऐ इब्न शस्तुम और तुम इब्न शाब, अपने लोगों के साथ मैदानों और मुख्तलिफ मोहल्लों में घूमो और उनसे गुफ्तगू करो कि हंगामा आराई करने वालों की औरतें बीवियां डर जाएं और अपने अपने मर्दों और बच्चों को लेकर घरों को चली जाएं। और शिम्र, तुम मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो अमीर। तुम भी महल के खुफिया दरवाजे से बाहर जाओ और अपनी कौम के मर्दों को इन हंगामा आराई करने वालों के दरमियान भेजो ताकि वो शियत के खिलाफ बातें करें और तफर्रुकाबाजी का पथराव करें। और तुम ये भी कर सकते हो सुलेम के मुरीदों के रूप में उसे उस जैसे वो लोग जो इस कयाम में शामिल नहीं हैं उनमें उनके खिलाफ मजीद फूट डाल दो। जी अमीर। और तुम बिन हुरैस, जी अमीर, अपने सिपाहियों का एक गिरोह ले जाओ और हंगामा आराई करने वाले शियों के मोहल्लों पर हमला करो और जहां तक हो सके हालात खराब कर दो। खास तौर पर कौम मुराद और रबी और हमदान पर रहम मत करना।
ये लोग अली के चाहने वाले नहीं हैं, नाउजुबिल्लाह अली की पूजा करने वाले हैं। इधर आप लोग, उधर हंगामा आराई करने वाले, और ये रहा सोना। बिस्मिल्लाह। कूफा के लोगों, शाम का लश्कर इन हंगामा आराई करने वालों और लड़ने वालों के खिलाफ कूफे आ रहा है, और उन्होंने कसम खाई है कि हंगामा आराई करने वालों की औरतों के बाल नोच ले और उनकी लड़कियों को कनीजी पर ले जाए। ऐ लोगों, ऐ कूफा के लोगों, खलीफा ने कूफे पर कहर नाजिर किया है। कमानी अबरू वालियों, तेरी जुल्फें कितनी हसीन हैं। ए हसीन होठों वालियों, ए हसीनो जमील परियों और महकती कलियों, ए गुलिस्ताने हस्ती के खिलते हुए फूलों, खुदा ने जब औरत बनाई मबहूत हो गया खिलकत में। आखिर हैफ नहीं है, देखो ना कितनी गलत बात है, अपने घोड़ों की सुमों के नीचे तुम्हें कुचल कर रख दें। उफ, उफ, उफ। गौर से सुनो, अपने इन जाहिल और हट धर्म शोहरों को लेकर अपने कूफे के सखी अमीर के पास ले जाओ कि तलवार दे दें और बदले में सोना ले लें। ए लो, शमशीर दे दो, सोना ले लो, शमशीर दे दो, सोना ले लो, शमशीर दे दो, सोना ले लो, शमशीर दे दो, आए हाय सोना ले लो, शमशीर दे दो, आए हाय सोना ले लो। ये औरतें क्या रस्सी तुड़वा के भागी हैं? ये सब क्या हो रहा है? मुझसे पूछते हो भाई? मैं भी तुम्हारी तरह हैरान हूँ। कूफे के मर्द कुछ कम रुस्वा थे कि ऊपर से उनकी औरतों को भी भेज दिया ताकि सारे जहान में हमें बदनाम करें। जरूर इनके पीछे किसी का हाथ होगा। जो भी हो, ये चाल इब्ने मरजाना की होगी। अब मैं मुख्तार की बात समझ रहा हूँ इब्ने उसजा। इन औरत नुमा मर्दों से वो खूब वाकिफ था। हैफ कि उसकी तदबीर पर किसी ने कमन नहीं धरे। हमें रास्ते बंद करने होंगे ताकि ये औरतें मर्दों तक न पहुंच सकें। राम का लश्कर एक झूठ है, एक धोखा है। इसके बारे में मैं सब जानता हूँ। मैंने खुद उनके कासिद को देखा है। वो हम पर मजनीक से आग वाले पत्थर फेंकना चाहते हैं। आओ आओ आओ, किसी पुरअमन जगह पर चले आओ। मुझ बेवा माँ ने तुझ यतीम को इस दिन के लिए परवान चढ़ाया कि मेरे लिए रोटी लाने का सबब बने। खुदा सलामत रखे, मैं नहीं चाहती तुम्हारा दाग मुझे सहना पड़े। माँ, इसका गुनाह तुम्हारे सर होगा कि तुम ही थी जिसने मुझे दीन खुदा की नुसरत की लोरियां सुनाई थी। अब भी सुनाती हूँ। तो मैं भी तो जहाद करना चाहता हूँ।
जहां तुम्हारे लिए नहीं है, जो कि घर के अकेले कमाने वाले हो, यही हाथ में शाम ठीक है। शकूर, तुम्हारी तलवार के वजन जितना सोना मिलेगा। हाय खुदाया, इतना तो ख्वाब में भी नहीं देखा था। तुम्हारा एक खून का कतरा भी नहीं गिरेगा और ठीक ठाक सोना मिलेगा। मैं सोने का हार पहनूंगी। आहिस्ता बोलो हबीबा, आहिस्ता। लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। ये कैसी बातें कर रही हो? तुमने वादा किया था कि जब महल पर हमला करोगे तो गर्दनबंद मेरे लिए माल गनीमत के तौर पे लाओगे। कल रात को ही वादा किया था, नहीं किया था? हाँ, वादा किया था, मगर अभी तक महल पर हमला नहीं किया है। आखिर ये कौन सा तरीका है कि अपनी जान को खतरे में डाल के लड़ो बगैर लड़ाई झगड़े के? तुम्हारी तलवार दे देंगे और बदले में सोना ले लेंगे। आपको शर्म नहीं आती इतनी बड़ी दाढ़ी रख के औरतों पर रास्ता बंद किया हुआ है? खुदा की लानत हो शैतान पर। मेरी बहन, किस कब्रिस्तान में जाना चाहती हैं आप लोग? मैदान जंग औरतों की जगह नहीं है। कैसी शर्मनाक हरकत है। अपने घरों को जाइए और फितना मत कीजिए। कौन सा घर शेख? जिसकी कफील को कुर्बान के मैदान ले गए वो घर नहीं है, जहन्नुम है। आप लोगों को तख्तो ताज की हवा से क्या हमें इसके लिए कुर्बानी देनी होगी? अरे 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 अरे, ये कैसे इल्जाम लगा रही हो औरत? कुछ खुदा का खौफ करो, फौश कलामी मत करो। जाओ, मैं कहता हूँ जाओ और मर्दों के मामलात में टांग मत अड़ाओ। कोई साफाज़दा औरत की फरियाद को सुन ले। मुझे अपने शौहर को देखना है। इन काफिरों ने हमारे लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। खुदा की खुदाई की कसम है, अगर रास्ता नहीं खोला तो अबाया उतार दूंगी, बाल खोलूंगी, सीना चाक कर दूंगी, अपने कपड़े फाड़ लूंगी ताकि तुम जैसे बेदीन और काफिर को रुसवा करूं। हट जाओ, सामने से हट जाओ। शर्म करो औरत, वापस आओ। किस बात से शर्माओ बेघर? तो मैंने कौन सी बुराई की है? तुम शर्म करो कि औरतों पर तलवारें लिए खड़े हो। हिम्मत है तो मुझे हाथ लगाओ। हट जाओ भाइयों, तुम लोग मर्द हो। इन औरतों के मद्दे मुकाबिल नहीं खड़े हो सकते तुम लोग। इनसे निमटने के लिए हमें कोई नामर्द ढूंढना होगा जो इन खालिस कूफी जुबान दराज औरतों से मुकाबला कर सके। तुम मारे जाओगे तो मैं तुम्हारे यतीमों को कैसे पालूंगी? मुझे बताओ, मैं किसके आगे खैरात के लिए हाथ फैलाऊंगी? पागल हो गए हो या बहरे हो गए हो? हुआ क्या है जो सुनते नहीं हो? शोर और गुल मत मचाओ औरत, कुछ तो मेरी इज्जत रख लो। दीने खुदा के दिफा के लिए ना उठूं क्योंकि मारा जाऊंगा। अगर तुम नहीं उठोगे तो क्या दीने खुदा खत्म हो जाएगा? इतने सारे लोग तो हैं ना जो दीने खुदा की हिमायत कर रहे हैं। मुंह बंद करो। खुशखबरी है अमीर, हमारे तीर हदफ पर जा गिरे। औरतों के लश्कर ने अपने मर्दों पर हमला कर दिया। तमाम लोग बिखर रहे हैं। आगे बढ़ो बिन हुरैस, ऐसे ही चलते रहो। शहर के जंग में आधा लश्कर औरतों का होता है। जीत उसकी है जो औरतों को मैदान में भेज सके। हम 10-15 अफराद ही रह गए हैं जो इस बड़े बुर्ज के सामने खड़े हैं। शायद उनके तीर अंदाज हम पर हमलावर हो जाएं। बेहतर रहेगा कि दीवार की पनाह में जमा हो जाएं। मगरिब का वक्त है, मस्जिद चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अव्वल वक्त की नमाज वो फजीलत रखती है कि मलाइका उसके सवाब को गिनने से भी कासिर हैं। आज रात हमसे खुदा का घर भी छीन लिया इन लोगों ने। भाइयों, बेहतर है किसी छत के नीचे
नमाज कायम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या रहमान या रहीम। किबला किस तरफ है? इस तरफ होना चाहिए। नहीं नहीं, थोड़ा सा उल्टे हाथ की तरफ है। उल्टा हाथ या सीधा हाथ? मशरिक की तरफ रुख करके उल्टे हाथ और सीधे हाथ के बारे में बहस कर रहे हो। किबला उस तरफ है मुसलमानों। मशरिक इस तरफ है या उस तरफ? बैतुल खला इस रुख पर बना है, तो फिर किबला उस रुख पर ही होगा ना। या अमीर, मैदान में परिंदा भी पर नहीं मार रहा, सब चले गए। परिंदे पर नहीं मार रहे क्योंकि अंधेरा हो गया है बिन हुरैस। परिंदे रात को परवाज नहीं करते सिवाय उल्लुओं के या हिलागरों के। ये एक मसलिहती सकूत है, बिल्कुल उसके पीछे हटने की तरह जो झुंड से अलग होना चाहे। तमाम गलियों में रातों को घूमने वाले सिपाही फैला दो। आज रात नींद हराम है। जो भी घर से बाहर आएगा वो अलवी है और उसका खून हलाल है। जी अमीर। वैसे बिन हुरैस जी, किबला किस तरफ है? किबला किबला गालिबन इस तरफ होगा। ये बताओ सूरज किस सिमत पर डूबा था? सूरज इस तरफ गुरूब हुआ। तो फिर इस सिमत पर तो मशरिक पड़ेगा ना। ऐसा लग रहा है कि आज तक किसी ने भी इस छत के नीचे नमाज ही नहीं पढ़ी। कुर्बान जाऊं आप पर, जहां तक मुझे याद है हमेशा मस्जिद में ही नमाज पढ़ी। बहुत अच्छे। अगर हंगामाराई करने वाले मस्जिद में ना ठहरे हों तो अपनी नमाज मस्जिद ही में पढ़ना। हाँ, ये अच्छा नहीं। जिस जिस को वुजू दोबारा करना है वो कर सकता है। बिलाखिर किसी का यकीन ठहरा कि किबला किस तरफ है। आप इस रुख पर नमाज पढ़ लीजिए, अगर गलत हुई तो कफारा मेरे जिम्मे। क़द क़ामतिस सलाह। नियत कीजिए 3 रकअत मगरिब की नमाज बजा लाता हूँ हाजिर पे जिमा अमीर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की इब्तिदा में। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। इंसान हुआ हैवान। मैं मशवरा दूंगा कि सुबह होने तक मस्जिद में ही ठहरे। मैंने सुना है कि मुख्तार सकफी एक लश्कर के साथ कूफे की तरफ रवाना हो गया है। इसी मस्जिद कूफा में मेरे चचा अली की दाढ़ी को उनके सर के खून से खिसाब किया गया। मैं क़ज़ा इलाही से क़द्र इलाही की तरफ जा रहा हूं। मुझे हुसैन को खबर देनी होगी कि कूफा वाले वही इंसान नुमा जानवर हैं जो मेरे चचा अली के दौर में थे। मुझे उन्हें कूफा आने से रोकना होगा।
कूफे से बचना चाहिए, कूफे से चले जाना चाहिए। शहर के तमाम दरवाजों को बंद कर दिया गया है। नहर वाले रास्ते से कूफे से निकला जा सकता है। तो फिर नहर के रास्ते से जाएंगे। कोई रास्ता जानने वाला रास्ता दिखाए। खुदा करे आपको आबे कौसर नसीब हो अम्मा। शुक्रिया मेरे बच्चे। तो अब जबकि तुम सैराब हो गए हो तो उठो और अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। मैं कूफे में गरीबुल वतन हूँ अम्मा, मेरा कोई घर और ठिकाना नहीं है। कूफा अजनबियों का कातिल है बेटा। इस 1000 चेहरे वाले शहर क्यों आए? हम कूफियों के बुलावे के मेहमान थे। तुम्हारा नाम क्या है? मुस्लिम इब्ने अकील। मेरे सर पे खाक। तुम मुस्लिम सफीर फर्जंद रसूल हो? क्या मुझे सिर्फ आज की रात अपने घर में पनाह दे सकती हैं? सिर्फ अपने बेटे बिलाल से खौफजदा हूँ, जो कि एक नाअहल लड़का है और नीच किस्म के लोगों के साथ मैखारी करता है। रात से लेकर फजर के अज़ान तक मैखारी और अय्याशी में मसरूफ रहता है। फजर के करीब घर आता है मस्त व मदहोश हालत में। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो ना समझ सके। क्या हुआ हबीब? क्या किया तुम लोगों ने? ऐसा लग रहा है कि घरों पर मुर्दे की खाक उड़ा दी गई हो। चीख चीख कर हमारे गले थक गए। दीवार से तो आवाज आई मगर कूफियों के घरों से नहीं आई। मैं महल के सामने भी गया, कोई नहीं था। जनाबे मुस्लिम कहाँ है इब्ने सजा? नहीं जानता हबीब, मैं नहीं जानता। जब मैं आया तो कोई भी नहीं था, न महल के सामने न मस्जिद के अंदर। यानी तुम उनके साथ नहीं थे ऐ इब्ने सजा?
नहीं, तुम गए तो हम भी गए गली बंद करने के लिए, मगर कूफे की जुबान दराज औरतों को ना रोक सके। मजबूरन हमें रास्ता खोलना पड़ा। मुझे शर्म आई कि खाली हाथ जनाबे मुस्लिम के पास जाऊं। मैं अपने सर पे खाक उड़ाने गया था, मगर वो भी ना कर सका। जब आया तो कोई भी नहीं था। जनाबे मुस्लिम कूफे में गरीब हैं हबीब, वो यहाँ अजनबी हैं, मालूम नहीं कहाँ गए होंगे। लानत हो कूफा और कूफियों पर। कूफा सेब है, कूफा मनहूस है, कूफा जादू नगरी है, कूफा बुजुर्गाने दीन का कातिल है, कूफा जानवरों का शहर है। खुद को संभालें हबीब, हमें जनाबे मुस्लिम को ढूंढना होगा। आखिर कैसे, किस मोहल्ले में, किस कबीले में? तमाम गलियों में सिपाही और फौजी फैले हुए हैं। जब तुम आए तो नहीं देखा। क्या हुआ हबीब? कहाँ जा रहे हैं? मुझे कूफा और कूफियों से घिन आ रही है। वहां जा रहा हूं जो इस तरह आफत ज़दा न हो। हुसैन कूफे की राह में, मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूं। खुदा की कसम मैं भी इस काफिरिस्तान से बेजार हूं। रुको ताकि निकलने का चारा कर सकें। चारे कार नहीं है इब्ने औसजा, मुझ में रुकने की अब सकत नहीं रही। आशिक हुसैन दरिया का रुख करने जा रहा है। चुप रहो बस, अब चुप रहो बस, अब तंग मत करो इब्ने अज़ल। मैं तुम्हारी तरह गया गुजरा नहीं। तुम्हारी नानी मेरे लिए दुल्हन लाने वाली है, बिल्कुल चांद सा चेहरा। खुदाया, कैसा गधा है ये, कम से कम एक ढंग की औलाद भी होती। बिलाल, बिलाल। कल रात में हर रात से पहले घर गया। दोस्तों ने बहुत जिद की कि रुक जाओ, थोड़ी सी और पी ले, कुछ ऐशो मौज कर ले। मैंने कबूल नहीं किया। बस उन लोगों की बातों से चिढ़ता हूँ, वरना मुझे इस शराब हराम की भी कोई परवाह नहीं है। जितना पिला लो पी लूंगा। मुझे डर है कि उस बूढ़ी औरत ने मेरी उठने की आवाज ना सुन ली हो और मुझे बद्दुआ ना दे दी हो। कहते हैं कि माँ की बद्दुआ जल्दी असर करती है। वैसे सलार साहब, खुदा ने चाहा तो इन दिनों में इंशाल्लाह शराब नोशी की इजाजत तो मिल जाएगी ना? शराब नोशी को खुदा ने हराम किया है माँ, इसकी कौन इजाजत दे सकता है? मैंने सुना है कि अमीरुल मोमिनीन यजीद बजाते खुद शराब और शेर वाले हैं। शराब पियो, मिंबर जलाओ, लेकिन लोगों को तंग मत करो। तुम्हारा मुंह हमेशा इतना ही गलत सलत चलता रहता है गधे। गलत इल्जाम क्यों लगा रहे हो? अगर मुस्लिम को तुम्हारे घर में ना पाया तो फिर देखना क्या हासिल करता हूँ। कैसी बातें कर रहे सलार? मैं उससे ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि वो मुस्लिम है या नहीं। जैसी निशानी आपने बताई उनके मुताबिक तो वही होना चाहिए। बिलाल, बिलाल, कहाँ चले गए मनहूस लड़के? तुम तो हमेशा जोहर की नमाज तक सो रहे होते थे। आज सवेरे सवेरे किस जहन्नम में चले गए हो?
घर का मुहासरा किया हुआ है इब्ने अकील। तुम्हारे पास राह फरार नहीं है। तलवार उठाई तो घर को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना देंगे। لا حول ولا قوة إلا بالله. तेरी जवानी पर लानत है बिलाल, मनहूस बगैर बाप के शराबी लड़के। ये एक हाशमी है बिन हुरैस, अरब के शेरों के कबीले से है, अली और हमजा के खानदान से है। जब तक उसके हाथ में तलवार है बहुत मुश्किल है इस पर काबू पा सके। मैं मुस्लिम को मारना नहीं चाहता इब्ने अशश। उसे अमान दे दो, शायद कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मर्द का बच्चा है जो मुझे एक घूंट पानी दे दे। इब्ने अकील, मैं इब्ने अशद हूं जो तुमसे बात कर रहा हूं। अगर मजीद लड़ते रहोगे और हमारे आदमियों को कत्ल करते रहोगे तो अमीर खून के किसास के तौर पर तुम्हें भी कत्ल कर देगा। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं अपनी इज्जत की जबान देता हूं कि तुम्हारे लिए अमाननामा ले लूंगा।
कोई बात करो मुस्लिम। मुझे मार दोगे या अमान दोगे? क्यों पूछ रहे हो? मैंने अमान के वादे पर तलवार रोकी है, वरना मैं तस्लीम ना होता। मैदान जंग में मारा जाना मेरे लिए ज्यादा बाइज्जत मंजिल थी। हाशमियों के सर उठाने से खुदा की अमान। असीरी की हालत में भी रजस ख्वानी करते हैं। ये लोग इल्तमास के लफ्ज को तो पहचानते ही नहीं। हम सिर्फ खुदा की बारगाह में इल्तिमास करते हैं। तो फिर खुदा से इल्तिमास करो, शायद वो तुम्हारी दुआ सुन ले और मुझे तुम्हारे कत्ल से रोक दे। खुदा से तलब मगफिरत करता हूँ। मैंने कहा था ना, हाशमियों का गुरूर उन्हें खुदा के आगे भी इल्तमास करने नहीं देता। तुम्हें कत्ल कर दूंगा मुस्लिम। मैं जानता हूं कि तुम इतने सखी नहीं हो कि अपने दुश्मन को बख्श दो। मैं अपने किसी ऐसे जानने वाले को वसीयत करना चाहता हूं जो इस वक्त यहां मौजूद हो। बिस्मिल्लाह। ऐ इब्ने साद, मेरे और तुम्हारे बीच रिश्तेदारी है। मैं तुम्हारे जरिए एक वसीयत करना चाहता हूं, एक राज की तरह। मैं कोई अच्छा राजदार नहीं हूं, मुझे माफ करो दो। ऐ पिसरे साद, मुजायका मत करो। ये बात मर्दानगी के खिलाफ है। तुम्हारा अजीज मौत के दहाने पर खड़ा है, उसकी वसीयत तो सुन लो। अगर उसकी वसीयत सुन लूंगा तो फिर मुझे उस पर अमल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। हरचंद के उस जैसे की वसीयत पर अमल करना जो कि मुर्तद है, सवाब भी नहीं और गुनाह भी नहीं। तुम्हारी गैरतमंदी और मर्दानगी बढ़ जाएगी इस तरह। वसीयत पे अमल करना आपकी मर्जी के खिलाफ हुआ तो क्या? फिर भी उस पर अमल करने को मर्दानगी समझते हैं। अब तक तुमने उसकी वसीयत नहीं सुनी बंदे खुदा। अगर उसकी दरख्वास्त मेरे जाती मफादात के खिलाफ हो, पूरा कर देना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसकी दरख्वास्त शरीयत मुकद्दस के खिलाफ हो तो अमल ना करना, उसका कुफ्फार अदा कर देना। वसीयत सुनाओ मुस्लिम। मेरे चचेदार भाई हुसैन इब्ने अली को लिख दो कि कूफा ना आए, लौट जाए। मेरे मरने के बाद मेरे जिस्म को दफना देना कि जमीन पड़ा ना रह जाए। मैं कूफा में 700 दिरहम का मखलूस हूं, वो अदा कर देना। मेरी सिरा और खुद को बेच के अदा कर देना। जानते हो वो मुझसे क्या चाहता है? वो तुम्हें अमानतदार जानता है उमर। राजदार रहो। अमानतदार कभी खयानत नहीं करता। हर चंद के बाज औकात खयानतकार शख्स को अमीन बना दिया जाता है। खूब मुस्लिम, तुमने वसीयत कर दी। कोई और ख्वाहिश है? मैं प्यासा हूं, थोड़ा सा पानी दे दो। बिन हुरैस, इसे पानी दे दो, मगर उस प्याले में जिसमें हराम गोश्त जानवरों को पानी देते हो। वो मुर्तिद हो गया है और जिस चीज को मुंह लगाएगा वो शरन नजस हो जाएगी। जी अमीर। मुर्तिद तो तुम हो कि बगैर किसास उस बंदा खुदा को कत्ल करते हो कि जिसका कत्ल करना हराम है। जो शख्स सिर्फ अपने गुस्से और सूए ज़न की बिना पर लोगों का कत्लेआम करता है वो मुर्तिद कहलाने का ज्यादा हकदार है। तुम जैसे शख्स की सांस और पसीना नजिस है जिसने अपने दिल को इब्लीस का घर बना लिया है। इब्लीस तो तुम हो कि नफ्स की ख्वाहिश की बिना पर खलीफा मुस्लिमीन पर खुरूज करते हो और वलीउल मुस्लिमीन पर तलवार उठाते हो और मुसलमानों के दरमियान तफर्रुका पैदा करते हो। तुम्हारा मुर्तिद होना बिल्कुल मुसल्लम है। मैं तुम्हें खुदा की रजा के लिए कत्ल करूंगा, ना कि गुस्से और सूए ज़न की वजह से। खुदा की कसम, तुम झूठ की जड़ हो।
अगर इस गिरोह के पास राई के दाने के बराबर भी खौफ खुदा होता तो तुम्हारे झूठ की गवाही देते। अफसोस अफसोस के दुनियावी ताल्लुकात ने मुसलमानों को इतना गिरा दिया है कि उनमें इंसाफ, शुजाअत और ईमान भी खत्म हो गया है। हम एक गासिब खलीफा के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हमने कैसर और कसरा जैसे शख्स के खिलाफ तलवार उठाई है। हमने निफाक नहीं किया, इत्तेहाद किया है। इराक के लोगों के 12,000 खतूत हमारे गवाह हैं। क्यों पानी नहीं पिया? मेरे मुंह का खून माने हो गया। देख लिया ना, खुदा भी तुम्हें पसंद नहीं करता। वो चाहता है प्यासे मरो। ये पानी मेरे लिए था ही नहीं, वरना खुदा की रहमत का दरिया बेकरां है। शायद प्यासा मरना मेरे जिहाद के अजर को पूरा कर देगा। तुम लोगों का खुदा के बारे में जो गुमान है वो तुम्हारी तरह हकीर है। खुदा को इंसान नुमा कोई चीज समझ रखा है क्या? अपने गुनाह की फिक्र करो मुस्लिम, खुदा की मार्फत अपने पास रखो। क्या तुम लोग ये गुमान करते हो कि खिलाफत में तुम लोगों का कोई हक है? गुमान नहीं है, यकीन है। सुन लिया आप लोगों ने भाइयों, सुन लिया? उमवी और अलवी के झगड़े की जड़ यही दावा है। जब देखो बहाने ढूंढते रहते हैं। अब दीन का क्या होगा, सुन्नत पैगंबर का क्या होगा, कुरान का क्या होगा, अहकाम दीन का क्या होगा, वगैरह वगैरह। ये रसूल खुदा का सही और मुहक्कम कौल है। फरमाया मुझसे कोई भी मिरास नहीं पाएगा। रसूल खुदा के तमाम दूर और नजदीक के असहाब इस हदीस नबवी पर मुत्तफिकुल कौल हैं। मैंने भी इस हदीस नबवी को सुना है जो तुमने नकल की है। अलवियों का कोई विरासत का दावा नहीं है। इनका खिलाफत में हक है तमाम मुसलमानों की तरह। खिलाफत उम्मत के नेक, साले, मुकर्रब और मोमिन लोगों का हक है। खुदा की कसम, अली और उनकी औलाद उम्मत के मुकर्रब तरीन और बातकवा तरीन लोग हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं। अली से पहले के खुलफा ने भी अली की दयानत, तकवा और इल्म की गवाही दी है। खामोश झूठे, अपनी झूठी बातों को खुलफा से मंसूब करते हो। खुदा की कसम, तुझे ऐसे मारूंगा कि दीन के आगाज से लेकर आज तक किसी को भी इस तरह नहीं मारा गया होगा। हाँ, तुम वही हो कि वो बिद्दत दीन में लेकर आओगे जो पहले कभी न थी। नामर्दाना कत्ल और आज़ा का कता करना और लाश को बरहना करना और घोड़ों से पामाल करवाना तुमसे कुछ भी بعید नहीं। कोई है जिसने इस मुर्तद से कोई जख्म खाया हो? मैं हूं अमीर बुकैर इब्ने हुबरान आहमरी। ये वो जख्म है जो मुस्लिम इब्ने अकील ने मुझे दिया है। बुकैर, इसे महल की सबसे बुलंद जगह से गिरा दो और इसके बदन से इसके सर को जुदा कर दो। जी अमीर। चलो।